Hello my dear students, in this video we are going to have comparative study of electrovalent compounds and covalent compounds. So let us compare these compounds on the basis of certain factors. The first factor to be discussed is their nature. So when I talk about nature of electrovalent compounds, so dear students, we know they are composed of ions. Since they are composed of ions, they are hard solids. Now question comes, why are they hard solids? So dear students, I take example of an ionic compound, that is NaCl. So NaCl is composed of Na plus and Cl minus ion, and these two ions are held together by strong electrostatic force of attraction which works in all the directions. So these lines are the directions in which electrostatic force of attraction is working. Since these ions are held together by a very strong electrostatic force of attraction, all right, so due to this electrostatic force of attraction, these ions are held together very tightly. That's the reason they are hard solid. They are hard solid yet brittle. It's a surprising fact that why are they brittle? So to make you clear, I'll just make a rough picture. Let us assume that there is an ionic solid in which positive and negative ions are closely packed. Alright, it's a piece of solid. It's a solid piece of an ionic compound. Let us take example that this is NaCl. जैसे नमक का solid piece है. Alright. In that, so many positive and negative ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Not only in one line, in the second line. And this arrangement, what I am making here and you are watching here, this arrangement is not only in two-dimensional plane, same arrangement extends in a three-dimensional space. That means same way oppositely charged ions are held together by three-dimensionally. मतलब जब आप देख रहे हो ये एक लेयर है, इसी के ऊपर सेम ऐसी दूसरी लेयर होगी, बस सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आयन, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आयन. ऑलराइट, अब जब आप इस तरह के आयनिक सॉलिड के ऊपर ज़रा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो, उसको तोड़ने के लिए ज़रा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो, तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो आयनिक लेयर्स हैं ये स्लाइड करती हैं, दे स्लाइड ओवर ईच अदर. और जैसे ये स्लाइड करेंगी तो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स दे कम ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन. और जैसे ही ऑपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे स्टार्ट रिपेलिंग. और जैसे ही वो रिपेल करते हैं आयनिक सॉलिड्स, दे ब्रेक. आई होप इट इज़ क्लियर. Now when I talk about nature of covalent compounds, so covalent compounds are made up of molecules. ये molecules से मिलके बने होते हैं, ठीक है. अब ये molecules से मिलके बने होते हैं, साथ ही साथ ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स ये सॉलिड में भी होंगे, अगर ये सॉलिड में है तो ये सॉफ्ट सॉलिड हैं, ये लिक्विड स्टेट्स में भी मिलेंगे और ये गैसियस स्टेट में भी मिलेंगे. मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, एंड वेरी फ्यू आर इन द लिक्विड एंड वेरी फ्यू ऑफ कोर्स आर इन द सॉलिड एंड विच आर वेरी सॉफ्ट. अब क्वेश्चन कम्स वाई दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस होंगे, सो दीज मॉलिक्यूल्स विल बी लूजली हेल्ड. और जब ये लूजली हेल्ड होंगे तो डेफिनेटली दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड. द सॉलिड विल बी सॉफ्ट ऑफ कोर्स बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक. सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसा मैग्नीट्यूड है किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, उसी हिसाब से वो कोवलेंट मॉलिक्यूल एक सॉलिड हो सकता है जो कि सॉफ्ट होगा, एक लिक्विड हो सकता है, या वो गैसियस हो सकता है. I hope the first point of comparison is clear. Now the next point of comparison is their boiling point and melting point. ठीक है, so let us talk about that. See dear students, electrovalent compounds are non-volatile in nature. Non-volatile मतलब it is very difficult to vaporize them. ठीक है, since they are non-volatile, so they have very high their boiling point and melting point. इनके melting and boiling points दोनों ही बहुत high होते हैं ना. Question comes, why do they have very high melting and boiling point? So the reason is same.
They are composed of ions, and these ions are held together by strong electrostatic force of attraction, and due to the presence of this strong electrostatic force of attraction, we require a large amount of energy to break it. और जब आप इसको तोड़ने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो इसका मतलब आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए. दैट्स द रीज़न दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की. सो कोवलेंट कंपाउंड्स, so these covalent compounds are volatile in nature. Since they are volatile in nature, इसका मतलब it is very easy to vaporize them. So they have low melting point and boiling point. और reason same है, there exists a weak force of attraction between their molecules. A force of attraction is very weak. That means little amount of energy you give, they will melt if they are solid, and little amount of energy you give, they will boil if they are liquid. I hope the second point is also clear to all of you. Now dear students, the next point of difference is electricity conducting nature. So if I speak about electrovalent compounds, usually they do not conduct electricity. Alright, they do not conduct electricity in solid state. Alright. Rather, they conduct electricity. They conduct electricity either in molten state or in aqueous solution. All right. So question comes, why they do not conduct electricity in solid state? So dear students, in the solid state, as we know, these ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Each time I am taking example of NaCl, which is very, very familiar to all of you. So due to the presence of this strong electrostatic force of attraction, ions are held together very tightly. ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी भी कंपाउंड को अगर हम कहते हैं ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड हमें फ्री आयंस देता है. फ्री आयंस का मतलब आयंस एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं. तो आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तभी होंगे ना जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ख़त्म हो चुका होगा. अब सॉलिड स्टेट में ये आयंस आपस में टाइटली बंधे हुए हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक, तो आयंस फ्री नहीं है, और सिंस ये आयंस फ्री नहीं है तो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. और जब हम बात करते हैं मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में, अब मॉल्टेन स्टेट हो, मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको हीट करोगे. ठीक है, जैसे आप इसको हीट करोगे तो वो हीट एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी, और जैसे वो इसको तोड़ेगी तो ये आयंस आपस में एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे. और जब आयंस आपस में दूर भागने लगेंगे यानी आयंस हो गए फ्री. जब ये आयंस फ्री हो गए सो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यही हाल होता है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं. जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है Na+Cl-, जिसमें आयंस आपस में बंधे हुए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, अब हम जानते हैं कि वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, तो नेगेटिव चार्ज आयंस ऑफ द कंपाउंड गेट सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पोल ऑफ द मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव पोल इसको घेर लेंगे, और पॉजिटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव पोल घेर लेंगे. ये जो मैं ओवल शेप मैंने बनाया है ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस माइनस जो मैं दिखा रही हूँ ये है उनका पोल. ये पॉजिटिव पोल है वाटर मॉलिक्यूल का जो Cl- को सराउंड कर रहा है. ये नेगेटिव पोल है वाटर मॉलिक्यूल का जो Na+ को सराउंड कर रहा है. जब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके Cl- को अपने पॉजिटिव पोल की तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, और इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने नेगेटिव पोल से मिलके Na+ को अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा. और जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा आयंस हो जाएंगे फ्री, और जैसे ही आयंस फ्री होंगे दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आई होप इट इज़ क्लियर. लेकिन जब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, सो कोवलेंट कंपाउंड्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सिचुएशन. मतलब ना तो ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे, ना मॉल्टेन स्टेट में, और ना ही ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करेंगे. क्यों? बहुत ही सिंपल रीज़न है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस. ठीक, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है डियर स्टूडेंट. जो वो एक्सेप्शन आता है वो है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स का, जैसे कि HCl.
HCl एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब इस तरह के पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक, इस तरह के जब आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स उनको घेर लेते हैं। पॉजिटिव पोल वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव साइड को घेरेगा और नेगेटिव पोल वाटर मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव साइड को घेरेगा, ठीक। तो ये ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करने लगते हैं और जैसे ही ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें दो एटम्स हेल्ड टुगेदर हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोसेस में जिसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन। यहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। आयनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ है वो इन पॉजिटिव पोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से फर्मली क्लोरीन की तरफ आ जाएगा और H से कंप्लीटली दूर हट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो H प्लस के फॉर्म में आ जाएगा और Cl माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखो, क्या याद रखना है आपको कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब अगर HCl गैस के फॉर्म में रहेगा, HCl अगर गैसियस स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक्वस HCl है, HCl पानी में है, तो वो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन के कारण आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखो, polar covalent compounds, they conduct electricity when dissolved in water, and non-polar covalent compounds, they do not conduct electricity in any of the situation. क्या मैंने बोला? Non-polar covalent compounds, ठीक है, they do not conduct electricity at all in any of the situation. I hope it is clear to all of you. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज सॉलिबिलिटी। सो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये हैं वाटर सॉल्युबल, दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, वाटर इनसॉल्युबल हैं। इसमें हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्शन होगा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। जितने पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज रेस्ट सारे कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर इनसॉल्युबल हैं। लेकिन जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों ये वाटर सॉल्युबल हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ सेम सोडियम क्लोराइड Na+Cl- जो आयंस हेल्ड टुगेदर हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक। अब जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, जैसे ही आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे, NaCl को पानी में ड्रॉप करोगे, तो जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नेगेटिव आयन को सराउंड करने लग जाएंगे, ठीक, ऑलराइट। और नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन को सराउंड करने लग जाएंगे। और जैसे ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव पोल के थ्रू क्लोराइड को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव पोल के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स Na+ को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, ये आयंस आपस में सेपरेट हो गए, ये आयंस हो गए फ्री। और जैसे ही आयंस फ्री हुए, ठीक, ये अपना पानी में डिसॉल्व हो गए। सो पानी में डिसॉल्व होने का मतलब आयंस का आपस में फ्री हो जाना। अब ये जो आप प्रोसेस लगातार पढ़ रहे हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आयंस का ब्रेक होके फ्री हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन।
इसको हमने क्या बोला, डिसोसिएशन, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो हैं पानी में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ डिसोसिएट हो गए। अब बात करते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें और हम नॉन पोलर को पहले पढ़ें, नॉन पोलर, ठीक, अगर हमारे पास कोई भी नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे कि हम क्लोरीन को ले लें या मीथेन को ले लें, CH4, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है आयनिक कैरेक्टर। पानी में डिसॉल्व होने के लिए आयनिक कैरेक्टर चाहिए, तो चूंकि ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई भी आयनिक कैरेक्टर ही नहीं है, और जब तक आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा किसी कंपाउंड में, या आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा किसी कंपाउंड में, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यही बात करें किसी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की, पोलर जैसे कि HCl, और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि HCl में 2 पोल्स हैं, पार्शियली नेगेटिव Cl और पार्शियली पॉजिटिव H, और पार्शियली, जैसे आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, पार्शियल नेगेटिव साइड ऑफ HCl मॉलिक्यूल को पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और पॉजिटिव साइड ऑफ HCl मॉलिक्यूल को नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, यहाँ कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। और प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आयंस थे नहीं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के पोलर एक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर था वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, सो किसी मॉलिक्यूल्स का आयंस में कन्वर्ट होना आयनाइजेशन है। सो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं, प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन की वजह से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। This comparative study of electrovalent and covalent compound is very well understood to all of you.